Hello and welcome everybody. Today we are going to be talking with Rahul Roushan on his book, Sanghi Who Never Went to a Shakha. Sanghi Who Never Went to a Shakha. And it's available at Garuda Books. Welcome Rahul, welcome. Thank you for inviting me. And thanks everyone for joining. And sorry for a little white beard, but can't do anything. I'm not a youth leader like Rahul Gandhi. Some people can be youth leaders at 50 years old, right? I haven't got the vaccination. I'm not eligible for it. So I'm young. Okay. Yeah. Yes, but we definitely have certain youth leaders that are evergreen. So awesome. Sure. This title of the book itself is so much fun. And I was thinking, I probably qualify in this, and there's probably quite a few other people who qualify in this also. Right. How did you pick that? I thought that was pretty fun and funny title. Right. I mean, it came a bit naturally because this is what I was trying to write. Unlike say second term of Modi, or maybe the later term rather, let's say. Initially, it was Sanghi, which was mostly used. These days, obviously, you have Bhakt and, like Bhajan Mandali, IT cell and stuff like that. Obviously, they can keep putting new things and stuff like that. But Sanghi was one of the earliest attempted insults. And definitely at one point of time, I did consider it as an insult, which is something, even written in my book. So and obviously, because Sangh is there, RSS, it's, they keep on blaming the organization for anything and everything. And in the process, they credit the organization far more than, it might have actually its share of, either achievements or failures. So in that sense, the word came naturally. And the phrase that Sanghi Who Never Went to Shakha, because this is what, the story was. And somewhere I knew that, this title will click, this title will be something that many people will think, oh, that's something, that's me. And that will trigger some curiosity. And who knows, they might, go on and read it. Because getting people to read books is obviously pretty challenging. So that's how I decided on it. And from my faking news days, the first thing that I decide is the headline. If anything I'm writing, if an article I'm writing, then the headline is the first thing that I decide. and similarly for like book, before I started writing, the title was fixed in my mind, that just like the headline is fixed in my mind, that this will be the headline, and then I'll write. So the title, it came to my mind that Sanghi Who Never Went to Shakha, this should be the title, and yeah, that was it. And then I started writing actually. Wonderful one. Well, I'm officially dressed in Sanghi outfit here. I got all my saffron on, right? So that should qualify. Not the Sanghi that, because these days anything saffron is Sanghi. You don't have to be going to a Shakha, nor do you have to wear the Sangh outfit. Exactly. But forget that. And in fact, now we are in the woke zone where even if you are going to a temple, or if you are having a tika, that's forget tika. Even if you are seen somewhere around the temple, you are Sanghi enough. So yes. So we are currently in that zone. Forget ideology, forget what you are wearing. Right. Even the slightest hint that you associate yourself with an identity, which is Hindu, is good enough to be to get you branded as Sanghi, and bigot and everything, obviously. So we are into that zone currently. So hopefully more and more people will actually associate with the title and the book. Yeah, the book we are discussing is Sanghi Who Never Went to Shakha. This is available at Garuda Books. The short link is grpr.in/Sanghi. This is very similar phenomenon, actually, since you were speaking of woke, Rahul. Even in the US, in US academia, and this is something,
we started writing on Sulekha. I think it was maybe about 20 years ago, around the year 2000. That time Rajiv Malhotra was writing, I was writing. There are a few other people that were writing on Sulekha. And at that time, what we were writing was, we were writing to challenge the distortions of Hinduism in US academia. So we found Okay. that as American Hindus, we found that the US academia was distorting Hinduism. And just like the Right. epithet Sanghi is used, increasingly the epithet Hindutva is used in academia Right. for the same purpose. So any Hindu who speaks up in any way and says, "Wait a minute, you're maligning my tradition, you're distorting it. This is not, you're misrepresenting it." As soon as you say that, you are Hindutva, Right. Right. True. right? True. Right. So I think there's quite a parallel with what is going on. In fact, I've written an article called "Hindutva is Hinduism that resists." So Right. anytime when you resist, as long as you're willing to be walked all over, you're willing to be slapped, you're willing to be branded, and you're willing to say we are the most terrible people in the world, then you're Right. nice and secular. But Right. as soon as you say, "Well, wait a minute," then you're a Sanghi. Absolutely. Yeah. That's the truth, and that's what it kind of comes in my book as well. You talk about those almost 20 years ago when Rajiv Malhotra ji and you were writing, and obviously we have come a very long way from there, from what as you rightly put out, what could be something of a topic of debate in a very small circle in the US diaspora, that now obviously has become mainstream, and it's there in India, which is pretty in a way very strange and weird, because this should have been actually the mainstream in India rather than the other way around, because we should Yes, have debated and settled this debate in India, and then I mean, US should have got no other chance but to admit or concede that, okay, this is the mainstream voice from India, and that's what we have to kind of agree to. But yes, unfortunately, we are still fighting that battle where our identity, our representation, that itself is questioned. Uh, mm, in and But the good thing is that say 20 years back, when I was also, definitely young, unlike the white beard today, and I was not too aware of those things, and to be very honest, I was not too much into these political or ideological debates, or even awareness, which again comes in my book, that part of my life. And I was not that much aware of what Mr. Malhotra was writing, or say what you were writing. So the good thing is that now, a young person, maybe somebody in their 20s, that generation, I mean the new generation, at least people who are active online, they at least have little context and awareness about that. Unlike mm, earlier, when you thought that what you are following or what you are believing is the ultimate truth, and is the real neutral position. At right, least now that overturn window has the overturn window has been shifted, and now people know, that okay, these are the kind of stated positions of different right, groups, and what perhaps they used to think was the only truth, or the default truth, or the neutral position. They also now know that that's not the case. So that's one good thing that has happened. Obviously, And do you credit you know. social media for that to some extent? I mean, in some senses, there have been two waves, right? Right, When we were writing that time, this was around the turn of 2000. This is when right, the internet starts to become mainstream. Um, right, that's where the dot-com era starts, right? Right around right, that, like the whole
whole thing, which I was part of the boom and bust as well. Right. But the interesting thing is that one of the feelings I had was when the internet was coming, I said, the printing press, suddenly education became mainstream. Everybody could read. And in the internet, suddenly everybody could write. We didn't need only a small set of certified experts that would appear in the newspaper, and newspaper space would always be limited, but we could have a whole range of voices. And then social media has even amplified that to another level. Right. So I would rather say we are into the third wave, not of corona, but this digital or rather democratization of narrative. The first phase obviously is what you are referring to, the coming up of blogs, people becoming writer, and then the social media happened, and the we got, you guys got platform to write, which was earlier denied by the mainstream, that you won't even be allowed to have a platform where you write and you get your thoughts across. So at least with blogs, with that phase in the earlier 2000, that platform was there. Then due to social media, the distribution obviously, that it exponentially it rose. So it came to a position where, say, somebody who was articulate enough, or even if not articulate, then at least interesting enough in a way of putting across ideas, their distribution mechanism perhaps started paralleling something which even the mainstream media would be envious of. And now we are into the third phase, where, having realized both the things, that if there are people who are able to make platforms, or rather build platforms, and then if they also get a distribution network, then they can start challenging almost everything. Now we are in a phase where they are trying to get the same old control back onto the new media and onto the yes. tools. So now the gatekeepers want to get back into the social media, right. And now they want to categorize anything they don't agree with as hate speech. And precisely. Of course, the hate speech they agree with isn't hate speech. That's simply progressive. Precisely. So it's now that initially perhaps they didn't think that internet will become so mainstream, and with social media obviously everything changed. I mean, the behavioral the very basic behavioral aspects of people started changing. So now they know that it's the new reality. It's no longer just a virtual world. While it's a virtual world, it's impacting the real life, and they want the same kind of control back. So we are in a very interesting phase. Whether we we, in the sense that people who traditionally are not darlings of the the same traditional left oriented or left leaning media, how we survive this current phase, where the same old gatekeepers, as you rightly said, they are trying to have the same kind of control that they used to have in the mainstream media decades back. Right. So, yeah, and I found this chapter that you wrote on the ecosystem really interesting, because पहले बात ये ecosystem है क्या, ये जरा समझा तो दो, ये माजरा क्या है? वो वही तो समझाया है बुक में, पर so people absolutely, I'm going to give a little pitch for it again. Book we are talking about is Sanghi Who Never Went to a Shakha, and the chapter 7 really wonderfully describes this ecosystem, because we keep using this word, अरे ecosystem खड़ा है हमारे विरुद्ध, या ऐसे वैसे बात करते हैं, लेकिन है क्या ये चीज? राइट, वो वही मतलब उसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, जो कि वो एक जो इकोसिस्टम का जो चैप्टर है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने कई सारे जो टॉपिक्स मैंने जो टच किए हैं, वो हर एक टॉपिक पे एक एक्चुअली किताब होनी चाहिए. सो इन दैट सेंस कई बार मुझे खुद लगता है कि इस पे कहीं और ज्यादा या कहीं और एक्सप्लेन करता हुआ या कुछ और डीप डाइव जिसको कहते हैं वो कर सकते थे. बट देन आई वांटेड टू टच ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज
अभी जो कुछ हो रहा है, it's an amalgamation of all those factors, whether it's technology, whether it's the education system, whether it's obviously the electoral politics, and obviously the socio-political changes, or politics obviously I have already enumerated, so rather purely social movements that are taking place. So everything I have tried to incorporate, in which obviously this much used, abused or misused word, the ecosystem, also comes up. So in the chapter I have basically kind of stuck to the Congress left ecosystem, in or rather the secular liberal ecosystem. So what exactly it is, क्योंकि कई बार स्पेशली ऑन ट्विटर, खासकर जब राइट सो कॉल्ड राइट विंग की जब हम बात करते हैं, तो कोई भी एक दूसरे से थोड़ी सी भी बहस हो गई, या पीपल इफ दे डिसएग्री विथ ईच अदर, और पीपल इवन इफ दे अटैक ईच अदर, तो तुरंत लोग द फर्स्ट रिएक्शन वुड बी कि यार क्या राइट विंग का तो कभी इकोसिस्टम बन ही नहीं सकता. So in that sense, people also have little misgivings about how what exactly is an ecosystem, how exactly does it work. मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इकोसिस्टम में एक दूसरे पे लोग अटैक ही नहीं करते, या एक दूसरे से डिसएग्री नहीं करते. तो कांग्रेस और लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है, और इनफैक्ट जब हम ये वर्ड ही यूज करते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट, आप देखो तो केरला में एक दूसरे के खिलाफ हैं, बंगाल में एक दूसरे साथ में हैं, और ये तो सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात है. और जब हम लेफ्ट या कांग्रेस आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, तब उनके कितने एकदम एक दूसरे से जो उनका एक रिलेशनशिप जो है, इंटर रिलेशनशिप, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ता है, वो उसको समझने की जरूरत है. और ये सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट की बात नहीं है, ये तो नाम देने के लिए सिर्फ हमने कह दिया कि कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम. इट्स एग्जैक्टली वो इकोसिस्टम था क्या जो आज हम जिसको कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम कह सकते हैं, वो उसकी जेनेसिस कैसे हुई, और वो इन अ वे वो हर तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उसको अपने इकोसिस्टम में वो इंक्लूड कर सकता है. चाहे आप भारत तेरे टुकड़े हों बोलें, चाहे आप आप या तो अपने आप को अम्बेडकराइट पेरियराइट बोल लें, या आप अपने आप को अहले हदीस सुन्नी कुछ भी बोल लें, मतलब आप कुछ भी बोल लो, आपको उस इकोसिस्टम में कोई ना कोई जगह दे दिया जाएगा. लेकिन द मोमेंट यू से कि नहीं, आपकी कोई आइडेंटिटी हिंदू जैसी कोई चीज है, तो आप उस इकोसिस्टम से बाहर हो जाते हो. तो आखिर क्यों होता है वो? आखिर इस इकोसिस्टम में हिंदूज को छोड़कर बाकी सबको जगह है. इसकी वजह क्या है? इसका जो सेल्फ आइडेंटिफाइंग हिंदूज, यानी कि हिंदुओं की जगह है, as long as हिंदू धर्म को गाली दे तो हिंदुओं की जगह है. की तरह नहीं कि आपने वो सैफरन पहन लिया और अपने आप को स्वामी बोल लिया, तो तब तो आपको ऑब्वियसली आपको उस इकोसिस्टम में जगह मिल जाएगी, क्योंकि आप भले ही अपने आप को स्वामी बोले, सैफरन पहन लें, लेकिन आप जब तक हिंदुइज्म एक वाइडर असर्टिव आइडेंटिटी को सपोर्ट नहीं करते, जब तक आप उसके रिलीजियस बिलीफ्स को इंसल्ट, और बाय डिफॉल्ट सिर्फ इंसल्ट, क्योंकि अग्निवेश ने वही किया, उसने कभी और कुछ नहीं किया. आप जब तक वो नहीं करते, तब तक आपको इस इकोसिस्टम में जगह नहीं है. जबकि वही सारे जो रूल्स हैं, द सेम स्टैंडर्ड्स यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई टू से to Islam or to Christianity or to even say the neo-Buddhist or the Periyarite philosophy. You are not supposed to question anything. You are not expected or supposed to insult their beliefs. लेकिन हिंदूज का आप सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट ही करो, और उसके बाद अपने आप को आप हिंदू कहो, then you can be part of that ecosystem. But till the time you are aware, assertive of your identity, and you believe in giving respect to the Hindu thoughts and the belief system or the culture or the tradition, then you are not part of something of value, or you think that there is something of value there. It is not just something which is which is to be discarded. Right. So is it by default or is it by design? And if it's in either case, if it's by default, then why it's by default? And if it's by design, then who designed such an ecosystem and why it was designed? That's what I have written in my book. और थोड़ा तो मैं उसको I'll leave a suspense. Details तो आप बुक में पढ़ लो कि क्यों है. But that's what I have tried to explain कि आखिर ये ecosystem ऐसा क्यों है,
जिसको हिंदुइज्म से एलर्जी है, और अदर हिंदू आइडेंटिटी से, हिंदू बिलीफ से एलर्जी है, और एग्जैक्टली ये है क्या? आई मीन इट्स नॉट व्हिच आई हैव kind of twice or thrice tried to make a point and assert it. Ecosystem doesn't mean that you keep on. It's not a syndicate. It's not a clique that everyone is working with some clandestine understanding or a common goal, and they are meeting regularly behind the scenes and devising big plans. That doesn't happen. Some elements of ecosystem definitely can do it, but the broad ecosystem, it's designed by default to work in that sense. Or yes, book is really interesting insights. I'm not going to give all the game away either. लेकिन आप ये जरूर पढ़िए कि हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, लेकिन उसके कंपोनेंट्स क्या है और उसका जेनेसिस क्या है और वो कैसे बना, उसके बारे में बहुत आप डिटेल में चर्चा पढ़ेंगे संघी हू नेवर वेंट टू अ शाखा बुक में, राहुल रोशन की, और आप इसके नीचे लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं grpr.in/sanghi। तो लेकिन एक कहीं कहीं तो राहुल जी कोऑर्डिनेशन दिखता है, क्योंकि आप देखोगे जैसे ट्विटर ट्रेंड चलता है, और या कुछ चीजें हैं जो आप देखोगे कि राजदीप ने भी वही ट्वीट कर दिया, स्वरा भास्कर ने भी वही ट्वीट कर दिया, कौन सा मुद्दा एकदम बनाना है और उसके ऊपर पढ़ना है, और आप देखोगे ट्वीट की भाषा भी एकदम मिलती जुलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो that is there, जो मैंने बुक में भी लिखी है कि while the broad understanding of the ecosystem is not like a syndicate, some elements definitely we have like a syndicate, और जो आप कह रहे हो ये तो पूरा का पूरा सिंडिकेट की तरह ही काम कर रहा है आजकल, और in a way which a way is laughable, and अगर आप ट्रेडिशनली लेफ्ट के हिसाब से अगर सोचो तो this is such a demotion of what they were. This is not how they used to operate. उनके मूव्स जो थे इतने सटल होते थे कि तभी तो उनकी जो विचारधारा थी उसको उन्होंने एक तरीके से न्यूट्रल विचारधारा बना दिया था, क्योंकि वो इतने सटल तरीके से करते थे, वो समझ में नहीं आता। आज इतना ब्रेजन हो गया है कि मतलब कोई भी बंदा अगर ट्विटर पे ढंग से एक्टिव है, उसको साफ दिख जाएगा कि यार ये तो कोऑर्डिनेटेड धंधा चल रहा है, कि एक ही चीज जो है वो हर बंदा ट्वीट कर रहा है, एक ही टाइम पे इंस्टाग्राम पे एक ही तरह के प्लेकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं। सो दिस इज नॉट दिस काइंड ऑफ they have become so unsophisticated in a way कि जो एक तरीके से इनका होल्ड था, in which which also shows कि I mean this is not part of the book, but एक आर्टिकल मैंने जो पहले लिखा था कि in a way left has become pretty lazy. वो नई चीजें या नए थॉट्स वो नहीं ला रहे हैं, वही चीज है, वही उनको करना है, एंड ऊपर से ऐड टू दैट उनके जो हीरोज हैं उनका स्टैंडर्ड और नीचे गिरता जा रहा है। मतलब एक वक्त था कि भाई आपको मानना पड़ेगा कि हाँ एक रिगर थी उनके जो लोग थे, उन्होंने जो जिस तरह की किताबें लिखी या कुछ भी लिखी, वो एक रिगरस प्रोसेस था जिससे कि आप लेफ्ट में जाके हीरो बनते हैं। आज क्या है, आप कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दो, आप कोई भी फालतू के कन्हैया कुमार भी हीरो बन जाते हैं आज के दिन, तो कन्हैया कुमार भी बन जाते हैं, वो इनके हीरो बन बैठे हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, और इनका जो एजेंडा है जो कि एक वक्त काफी स्मूथ, काफी सटल, काफी प्रभावी होता था, अभी वो भी दिख जाता है। अब तांडव जैसे वेब सीरीज की जो बात है, तो उसमें आपने इतना कोई सटल चीज छोड़ी ही नहीं। कोई भी बंदा जिसको थोड़े भी समझ हो पॉलिटिक्स की, उसको साफ पता चल जाएगा भाई ये तो प्रोपेगेंडा आप कर रहे हो। और ये प्रोपेगेंडा इनका कितना सटल होता था कि आप वो एक तरीके से ह्यूमन कंसर्न और ह्यूमन उसकी बातें करके, और you could seed your ideological beliefs into people, जो कि अब वो मुझे लगता है I mean इनके जितने भी सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं वो तो दिन भर चीखते चिल्लाते ही रहते हैं। और एक वक्त था कि जब ये इतने आराम से बात करते थे, आप वो खुद ही सोच लें, बॉलीवुड के जो प्रोग्रेसिव राइटर्स यूनियन या इस तरह के जो लोग हैं,
उनमें से कितने लोगों ने प्लैकार्ड लिया होगा, कितने लोगों ने चिल्लाया होगा, कितने लोग मुंबई में जाके धरने पे बैठे होंगे, बट दे वर इफेक्टिव ना। उन्होंने जो चीजें की, जो जो जिस तरीके से उन्होंने मतलब ये 50 आफ्टर इंडिया के इंडिपेंडेंस के लगभग 50-60 साल तक अगर उनकी जो आइडियोलॉजी थी वही एक तरीके से डिफॉल्ट आइडियोलॉजी बनी रही, जिसको राहुल गांधी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा था कि कांग्रेस इज द डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, और वो सच्चाई है कि इनके सिस्टम ने वही बना दिया था। तो वो इनका ये दिस इज द काइंड ऑफ skill set, this is the kind of intelligence and influence they used to have, और वहां से गिर के अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप पे ग्रुप पे इनको कुछ मिल जाता है और वो डाल देते हैं, तो आधा फेक होता है और आधा फेक होता है। so in that sense we should be actually happy कि उनका जो स्टैंडर्ड है काफी गिर रहा है, और and on the other side हमारी तरफ जो है कि हमें जरूरत से मतलब और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तब जाके आप एक लेवल पे पहुंचते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए बल्कि गरुड़ का काम भी हमने इसलिए शुरू किया कि एक दूसरे टाइप का डिस्कोर्स एक आए जिसके अंदर कोई वेट हो, so that we can also produce a counter at least to some of the work that they're doing, and so definitely this book is also very much in that vein. तो ये एक मजेदार बात, आपकी परिवार वैसे कांग्रेसी परिवार रहा है पहले से, है ना? तो ये भी बहुत मजेदार है, बिकॉज अगर आप सोचो पीपल से कि अरे ये सब संघी हैं एक तरह से, लेकिन सवाल ये है कि जो कांग्रेसी हिंदू था वो आज संघी क्यों बन गया? बिकॉज ऑब्वियसली कांग्रेसी हिंदू संघी बना इसलिए बीजेपी पावर में आई। हाँ बिल्कुल। तो ये आई थिंक सेकंड चैप्टर जो है वो इस पे मैंने डिवोट किया है कि कांग्रेसी हिंदू और कांग्रेस मतलब बेसिकली इनके बीच में रिलेशन क्या है, आखिर कांग्रेसी हिंदू क्या होता है, और जो जैसे मेरी फैमिली थी कांग्रेस सपोर्टिंग फैमिली, आज वो अगर बीजेपी सपोर्टिंग फैमिली हो गई है, तो वजह क्या रही, वो तो खैर पूरी बुक ही उस तरह का है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस का जो कैरेक्टर पहले था, जिसके कारण कई सारे हिंदू जो कि कहीं ना कहीं आज के डेफिनेशन के हिसाब से संघी थे, वो लेकिन कांग्रेस से एसोसिएट क्यों करते थे, कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करते थे, वो समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो कि मैंने वो एक तरीके से बताने की कोशिश की है कि कांग्रेसी मतलब कांग्रेस को हम एक तरीके से एंटी हिंदू पार्टी बहुत सालों तक, बहुत दशकों तक लोगों ने नहीं देखा। इनफैक्ट 2012-13 के बाद ही इस तरह की बात शुरू हुई कि कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी है। नहीं तो आडवाणी जी या अटल जी के वक्त भी आप कांग्रेस को स्यूडो सेकुलर कह सकते थे, कांग्रेस को आप मुस्लिम अपीजमेंट वाली पार्टी कह सकते थे, लेकिन एंटी हिंदू सीधा कहना वो रिसेंट फिनोमिनन है, और वो एक तरीके से जायज भी हो जाता है जिस तरीके से फार लेफ्ट एक तरीके से आइडियोलॉजिकल मूविंग्स जो आजकल कांग्रेस वो कर रही है, फ्लॉन्ट कर रही है, तो हमारे लिए आज की डेफिनेशन लेंगे तब तो लाला लाजपत राय भी संघी हो जाएंगे, और इस सारे के सारे जो स्टॉलवर्ड्स थे कांग्रेस के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, बहुत सारे कट्टर हिंदू थे, और कट्टर हिंदू तो छोड़ दीजिए, आजकल तो जैसा मैंने कहा कि जो मंदिर जाता हो, जो अपने आप को जिसमें आइडेंटिटी हो, जिसको जो हिंदू कहने में मतलब जो कहे कि हाँ मैं हिंदू हूँ, और उसके कुछ वैल्यूज, उसके जो कुछ बिलीफ्स हैं, उसके जो दिनचर्या के कई सारी चीजें हैं, वो कहीं हिंदू ट्रेडिशन या हिंदू स्क्रिप्चर से इन्फ्लुएंस्ड हो, वो भी आज के जमाने में वो भी संघी है। तो मुझे तो लगता है नेहरू को छोड़ दें तो सारा का सारा कांग्रेस पे संघी ही था। जिन्ना की क्रिटिसिज्म यही तो थी कि ये हिंदू पार्टी है कांग्रेस, और ये ब्राह्मण पार्टी है, कांग्रेस को ये बोला जाता था तब के टाइम। राइट बिल्कुल। तो वो चीज भी टच हुई है, और वही एक वजह थी कि अधिकतर जो हिंदू थे, जो कांग्रेसी हिंदू जिसको हम कह सकते हैं, और जो वो टर्म मैंने अपनी बुक में यूज किया भी है कि दे वर कंफर्टेबल विद कांग्रेस। और जैसा आपने कहा, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब तो
आउट एंड आउट संघी कहलाएंगे आज के जमाने में, जो इनके बिलीव्स थे, जो इनके जो काम, इनफैक्ट गांधी जी भी कुछ हद तक संघी हो जाएंगे। गांधी जी को भी आज के अगर लेफ्ट से देखो, जिस तरह से लेफ्ट इतना एक्सट्रीम हो गया है, उस लेंस से तो गांधी जी भी संघी ही बोले जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो नेहरू को छोड़ के गौ माता की जो बात करता है, और जो यू नो इसकी बात करना है, वर्ण व्यवस्था की भी तो बात करते थे वो तो, तो वो तो एकदम उसको तो 100% संघी हो गया। बिल्कुल, आई मीन गांधी जी का जो कि एक तरीके से क्या कहें कि मतलब इल्यूजन जो उन्होंने एक बना लिया था, जो सीताराम गोयल ने भी वो क्रिटिसिज्म किया है, कि उनके दिमाग में कहीं बैठ गया था कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई बिल्कुल यूनिटी की तरह रह सकते हैं, और वो शायद मरते दम तक वो कभी इस बात को उन्होंने रीअसेस करने की कोशिश की नहीं। गांधी जी को एक क्रेडिट तो देना होगा कि कई बार वो चीजें अपने बिलीफ्स को रीअसेस करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका करियर देखें तो टुवर्ड्स द एंड वो अधिकतर चीजें रीअसेस नहीं करते थे वो। और अंबेडकर की भी ये क्रिटिसिज्म थी कि टुवर्ड्स द एंड ही हैड, you know, I mean, either you had to accept what he is saying, or then so he will be sitting on a rigidity had come. काफी rigid belief हो गया था, और उसमें से एक बिलीफ कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल वो रह सकते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली जो चीज थी, तो वो उसको अगर आप हटा दें तब तो गांधी जी पूरे के पूरे ये संघी ही नजर आएंगे आज के जो वो डेफिनेशन है उस हिसाब से। तो नेहरू कुछ इनफैक्ट मुझे तो लगता है आज से 5-6 साल बाद ये नेहरू में भी कुछ संघी इनको दिखेंगे लेकिन आज के जमाने में नेहरू तक, मतलब नेहरू वो अपने पास रख लेंगे, बाकी तो ये धीरे धीरे करके सबको कैंसिल करते जाएंगे, राइट फ्रॉम बाल गंगाधर तिलक टू इवन राजेंद्र प्रसाद टू इवन से इंदिरा गांधी में भी कई सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। बिल्कुल। अरे इंदिरा गांधी ने तो गाय और बछड़े के उनका कैंपेन सिंबल था, कांग्रेस का तब कैंपेन सिंबल था गाय और बछड़े का, और आज की कांग्रेस वो गाय का सर काट के चल रही है कि देखो तो इन अ वे एक हमारी बड़ी मजेदार एक बुक है अमित बगाड़िया की आई है, कांग्रेस मुक्त भारत, उसने भी इस फिनोमेनन को किया है कि कांग्रेस अपने आप को आइसोलेट कर रही है, दे आर मूविंग मोर एंड मोर टू दिस एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। जैसा आपने बोला एंटी हिंदू कभी कांग्रेस उस तरह से बोली नहीं जा सकती थी, लेकिन वो अपने आप को नैरो करते जा रहे हैं इस डिस्कोर्स के पीछे चलते चलते। और एग्जैक्टली बल्कि वो एक और जो आपने मुस्लिम रेडिकलाइजेशन की भी बात हुई है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, वो भी काफी मजेदार आपका चैप्टर लगा। एक तो ये ना आपका तो बहुत एक व्यापक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आपने थोड़ा कुछ टेलीविजन में भी काम किया, कुछ प्रिंट जर्नलिज्म को थोड़ा जर्नलिस्टिक उसमें टच किया, तो आपने इकोसिस्टम को अंदर घुस के भी देखा एक तरह से, जिससे आपको वो बने। तो इसमें ये बहुत, जैसे शरद पवार की स्टेटमेंट थी कि उन्होंने झूठा बॉम्ब ब्लास्ट बता दिया, just to show that even though the bomb blasts were all done by Muslim terrorists, they created a bomb blast story saying that it was targeting Muslims just to be secular, quote secular. ये क्या बात है? ये कहाँ से मीडिया में आता है? ये कैसे आ रहा है? मीडिया में भी हाँ, वो चीज मैंने वही लिखी है कि आज हमारे लिए ये इतनी शॉकिंग सी बात है, लेकिन एज रिसेंट एज से 2016 तक, ये 2016 में जाकर ये जो क्लिप जो हम बात कर रहे हैं वो तो आई थिंक 2006 की है, जो बुक में मुंबई ब्लास्ट की है वो। हाँ, राइट। सो 2006 में ये पहली बार इंटरव्यू एनडीटीवी पे एयर हुआ था, और तब मतलब किसी को ये शॉकिंग लगा ही नहीं। क्या नाम है, शेखर गुप्ता, ही इज इंटरव्यूइंग शरद पवार, और शरद पवार साफ बोल रहा है कि इन्होंने झूठ बोला। I mean, he himself is saying that he misled the public. And on various other occasions on public platforms, he had said that, and he had used the word, I misled the public about a 13th blast, which was in Masjid Bandar, which is a Muslim dominated area. Because I did not want, मतलब वही same thing कि ताकि वो रहे, मुसलमानों से भी लोगों को सिंपैथी हो एंड स्टफ लाइक दैट। और ये वो नेशनल टीवी पे कह रहे हैं,
एक आपके इतने बड़े एडिटर जर्नलिस्ट हैं शेखर गुप्ता, और उनके मुंह पे थोड़ी सी भी शिकन भी नहीं आती। मतलब ये वीडियो इंटरव्यू है, अगर कोई एक बंदा जो चीफ मिनिस्टर रह चुका है और उस वक्त कह रहा है कि और उस वक्त चीफ मिनिस्टर के तौर पे ही कि मैंने झूठ बोला, तो कम से कम एज ए जर्नलिस्ट आपको थोड़ा सा होना चाहिए था, थोड़ा चेहरे पे थोड़ी वैसे ही, अगर आपने काउंटर क्वेश्चन नहीं करना था या बॉडी लैंग्वेज से काउंटर क्वेश्चन तो कुछ किया ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी कि हाँ कोई बात नहीं, अच्छा ही किया, नॉर्मल चीज है, नॉर्मल। हाँ, और वो पूरी चीज एनडीटीवी पे एयर होती है, एंड ऑब्वियसली आप शेखर गुप्ता हैं, शरद पवार हैं, तो जाहिर सी बात है लाखों करोड़ों लोग ने देखी होगी वो। आज एनडीटीवी भले कुछ कोई ना देखता हो, लेकिन एनडीटीवी देखते थे 2004-06, उस जमाने में तो देखते ही थे लोग। अच्छी खासा इनका एक ओहदा बन गया था कि अच्छा टेलीविजन चैनल है, मैं भी देखता था। तो उस वक्त ये नेशनल टीवी पे आता है, लोग देखते हैं और कोई बात ही नहीं होती है इसकी। और ये बाद में यही क्लिप 2015-16 के आसपास जाके ट्विटर पे वायरल हो जाता है और लोग को लगता है ये क्या मतलब, अभी तो कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द मैं यूज करने वाला था, लेकिन ये क्या डैश है कि भाई आप एक मुख्यमंत्री ने झूठ बोला और उसको जज ने भी, जस्टिस श्री कृष्ण जो दंगों की जांच कर रहे थे, मुंबई दंगों की, बकौल शरद पवार उन्होंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा किया, कि वो काफी रेस्पॉन्सिबल काम था। और 2016-14 के आसपास, 2016 में ही आई थिंक ये क्लिप जाकर वायरल हुई ट्विटर पे, और लोगों को लगा ये क्या तमाशा चल रहा है। तो वहां लगभग 10 साल के ही अंतराल में इतना नैरेटिव चेंज हो गया है कि जो उस वक्त शेखर गुप्ता को जो चीज नॉर्मल लगती थी, और शेखर गुप्ता को भूल जाएं, जो लाखों लोगों ने वो देखा और शायद किसी को वो एबनॉर्मल नहीं लगी, आज वो हम नहीं पचा सकते कि ये क्या, ये सेकुलरिज्म के नाम पे आप कुछ भी कर जाएं, झूठ बोल जाएं। और ये तो वन ऑफ द लिटरली, अगर इससे भी आगे बढ़े तब तो ये जो पूरा यूपीए ने हिंदू टेरर वाला जो बनाया, उसके अंदर जो आरवीएस मनी की भी जो पुस्तक है हिंदू टेरर वाली, उस पे काम किया। और उसमें आई मीन सरासर आप पाकिस्तान का लश्कर तौयबा आकर आपके अटैक कर रहा है और आप बुक रिलीज कर रहे हैं कि आरएसएस की साजिश। ये कांग्रेस के लीडर बुक रिलीज कर रहे हैं कि आरएसएस की साजिश है। तो इस लेवल का बिट्रेयल, इस लेवल का, ऊपर से राहुल, मैंने इस पे आर्टिकल लिखा था, राहुल गांधी 3 महीने बाद यूएस एम्बेसडर को बोलता है कि एलईटी से कोई थ्रेट नहीं है, हमको हिंदू ग्रुप से थ्रेट है और मोदी से थ्रेट है। ये विकीलीक्स में आया है। तो ये तो एकदम पूरा जो क्या कहते हैं, एक कांग्रेस अपने आप को ही एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आकर अपने आप को कोई रूम नहीं दे रहा, तो और बाकी सब संघी हो गए, तो वही संघी बनाता है, कांग्रेस ही संघी बनाता जा रहा है। हाँ, ये 2004 के बाद जब मतलब यूपीए जब बनी और कांग्रेस को अचानक जो एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मिल गई, और रादर यूं कहें कि कांग्रेस की तो वो विक्ट्री थी ही नहीं, बीजेपी की डिफीट थी 2004 में, और इन्होंने एक कोएलिशन जो खड़ा कर लिया, उसके बाद से ये अजीब से अजीब बिहेवियर करते गए और 2009 में ये वापस जीत गए। तो इनको लगा, और इनको जो फीडबैक रहा होगा कि भाई आप यू कैन कीप ऑन पुशिंग द एक्सट्रीम और आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो अचानक वही हुआ कि जो अच्छा खासा तबका जो कि कांग्रेसी हिंदू था एक तरीके से, उन्होंने अचानक इनको छोड़ दिया। और वही वजह थी कि आप कहां से कहां गिरते हैं कि आप 44 और फिर 2019 में भी वो आते हैं, और इनको अभी भी वो समझ नहीं आ रही। हालांकि थोड़ा बहुत आज भी वो कर लेते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कहीं इधर उधर मंदिर में चले जाते हैं और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि लाइक दे हैवंट कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। लेकिन राम मंदिर की जजमेंट के बाद बड़ी उनकी केयरफुली क्राफ्टेड स्टेटमेंट्स आई कि उसको वो नहीं करना, अपोज नहीं करना है। राइट, वो बाद में मैं मतलब मेरी बुक में भी वो है कि इनको वो चीज थोड़ी रियलाइज तो हुई कि यहाँ ये जो एक्सट्रीम सेक्युलर और एक्सट्रीम लेफ्ट नैरेटिव या रेटोरिक ये जो पुश कर रहे हैं, उससे इनको घाटा हुआ है। और उसको काउंटर करने के लिए ये 2 चीज ही इन्होंने किया। एक तो यही जो पुराना इनका वो था
क्या हथकंडा कह लें कि आप ऊपर से दिखा दो कि हाँ हम भी हिंदू हैं, वो मंदिर चले जाओ, ये सब चले जाओ। और दूसरी बात कि आप किसी तरह हिंदू आजकल तो में, ममता बनर्जी भी अपना गोत्र बताने लग गई है। हाँ वो भी चंडी पाठ कर रही हैं आजकल तो। और दूसरा इन्होंने ये किया कि हिंदूज में आप किसी न किसी तरीके से एक सेंस ऑफ गिल्ट भरो कि अगर हम माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, इफ वी अपीयर टू बी केयरिंग फॉर माइनॉरिटीज, इट इज अ जस्टिफाइड केयर। तो डर का माहौल और ये सब कर दो ताकि एक आम हिंदू को लगे कि नहीं नहीं नहीं, सही में कुछ गड़बड़ हो गया है, सही में हर हर जगह मुसलमान को बांध के मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है। तो इसलिए अगर कांग्रेस या कोई भी पार्टी या कोई भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और वो अगर वो सीधा का सीधा मुस्लिम प्रो मुस्लिम बात करते हैं तो उसमें गलत नहीं है, क्योंकि ये मतलब माहौल खराब हो चुका है, डर का माहौल है। तो ये बेसिकली इनका ये टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाया, जो कि मैंने बुक में भी लिखा है कि थोड़ी बहुत हिंदूनेस दिखा दो ये मंदिर मंदिर में दौड़ के, लेकिन जो इनका मेन फोकस वही रहा इनका पूरे इकोसिस्टम का कि फिल एन एवरेज हिंदू विद अ सेंस ऑफ गिल्ट कि मोदी को जिताकर आपने कुछ बहुत बुरा काम कर दिया है। कि अच्छे दिन तो वही थे जब हिंदू मुसलमान जैसे बड़े प्यार मोहब्बत से बड़े सौहार्द में रहते थे। हाँ हाँ, और लिंचिंग हो रही है और डर का माहौल है और फला फला। तो इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं जो कि 2019 में तो बिल्कुल फेल हो गया है, लेकिन उसके फेल होने के बाद भी अभी भी मोदी के सेकेंड टर्म में भी इनका वही राग चल रहा है। और आई डोंट नो, शायद उनको लग रहा है कि 2024 में ये कन्विंस कर देंगे कि नहीं सही में बहुत खराब हालत है, जगह जगह मुसलमान मारे काटे जा रहे हैं, चर्चेस पे अटैक हो रहा है और वगैरह वगैरह। तो वो इनकी स्ट्रेटजी तो नहीं बदली है 2019 से। अगर मैं कहूं कि क्या इन्होंने कोई सबक, 2014 की हार डेफिनेटली शॉकिंग थी, लेकिन जो कंक्लूजन्स कांग्रेस और इनके इकोसिस्टम ने निकाला है वो गलत था, लेकिन दे आर स्टिकिंग विथ दैट कंक्लूजन। तो अभी 2024 में तो एज वी स्पीक राइट नाउ मुझे लगता है कि वही सिर्फ बीजेपी कुछ गलत करेगी तभी हारेगी, क्योंकि ये तो इन्होंने जो गलत कंक्लूजन निकाला था इसको अभी भी वो सही मान रहे हैं और वही स्ट्रेटजी ये अभी भी चला रहे हैं जो 2014 के बाद किया था और रादर 2015-16 के बाद जो किया था। बिल्कुल बिल्कुल। The book we are talking about is Sanghi Who Never Went to a Shakha by Rahul Roushan, available on Garuda Books. Short link is grpr.in Sanghi। और आपके कुछ सवाल भी हो, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके कोई सवाल हो तो आप अवश्य फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपने डाल सकते हैं और वो सवाल भी यहाँ राहुल जी के लिए हम उनको पेश करेंगे। तो इसमें जो आप ये जैसे कहा ना कि कांग्रेस in some senses the phenomenon you are talking about and really documenting is the Congressi Hindu has shifted. The Congressi, because right. Congress, right. because the Congress has shifted to the other direction, है ना? तो कांग्रेसी हिंदू अपने आप ही संघी हो गया, उसको कुछ करने की जरूरत, वो उसने अपनी आइडियोलॉजी नहीं शिफ्ट की, वो पहले भी कांग्रेसी हिंदू था, आज भी कांग्रेसी हिंदू है, राइट? लेकिन कांग्रेस ने स्पेस दे दिया कि वो सारे संघी हो गए। एग्जैक्टली और वहां शायद बीजेपी और संघ और सभी को जो कि आइडियोलॉजी समझते हैं उनको ये इंश्योर करना होगा कि ये जो कांग्रेसी हिंदू है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो अपनी जगह पे ही खड़ा रहा, कांग्रेस और लेफ्ट चला गया तो ये अपने आप संघी दिखने लगा। अब कांग्रेस वापस भी इधर आना चाहे तो कम से कम मेरे जैसे लोग तो अब उधर नहीं जाने वाले, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा बड़ा तबका हो सकता है जो कि अभी भी झांसे में आ जाए। तो ये जरूरी है कि वो चीज काफी क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये जो कांग्रेस उधर गया था, या ये जो कांग्रेस जो एक वक्त आपके साथ लग रहा था, उस वक्त भी आप ही झांसे में थे। कांग्रेस तो इनका असली जो पोजीशन है वो तो उधर ही था। तो ये जो क्लैरिटी है कि ये अगर वापस कांग्रेस इधर आने की कोशिश करे भी तो ये वापस में कांग्रेसी हिंदू जो हैं वो फिर से कांग्रेस को ही वोट न करने लगे, और वोट से ज्यादा वोट तो खैर आते जाते कोई भी रहेंगे। वो समझ, वो आप ये
फालतू की वो जो बातें हैं उसमें आप यकीन न करने लगे कि वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली टाइप की बिल्कुल जो चीज बिल्कुल है, कि वो बिल्कुल। जो एक काइमेरा बना दिया गया है कि राइट एवरी राइट रिलीजन इज गुड, सारे राइट। धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं, और ये सब सुनने में अच्छा लगता है। और एक आम बिल्कुल। आदमी को अभी भी आप जाओ, बीजेपी वोटर के पास भी चले जाओ, उनमें से कई सारों को अभी भी लगता है कि नहीं, वो ऐसे ही मान्यता है, हाँ, जनमानस में ऐसी ही मान्यता है। हाँ, राइट। तो वो उसको समझने के लिए वो एफर्ट डालना होगा, और वहीं पे चैलेंज होता है कि आप किसी को यूं कहो कि नहीं, कुछ धर्म तो बहुत गलत हैं, तो आप लगता है कि आप हेट स्पीच कर रहे हो, या लगता है कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े। तनाव तो तनाव इसको आ रहा है। हाँ, तो ये जो ये एक तरीके से एकेडमिक और नैरेटिव का जो चैलेंज है कि हाँ, आप जब इस्लाम या किसी रिलीजन के बारे में बोल रहे हो, तो आप मुसलमान के बारे में नहीं बोल रहे हो। बिल्कुल ये जो एक बिल्कुल। फाइन लाइन है, और यहीं पे जाके ये इतना चैलेंजिंग हो जाता है ये काम करना, क्योंकि जो एक मुस्लिम है वो तो इंसिस्ट करेगा कि उसमें और इस्लाम में कोई फर्क ही नहीं है, जो हम्म जो रिलीजन है वही दीन ही उसके लिए सब कुछ है। तो आप ये हम्म फाइन लाइन, ये फाइन डिस्टिंक्शन मैनेज ही नहीं कर सकते कि मैं इस्लाम हम्म, को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मुसलमान को नहीं। द मोमेंट यू बिल्कुल क्रिटिसाइज इस्लाम, लगभग एवरी मुस्लिम विल राइज अप कि नहीं, आप हमारे ही, ये आप हमें इंसल्ट कर रहे हो। तो यस यस। ये जो एक आम हिंदू को आप इस बात को कैसे समझाएंगे, तो वो एक ये भी बड़ा मजेदार फिनोमिनल है राहुल, आपने देखा भी होगा। इसके बारे में एक दो हाँ, बार मैंने ट्वीट किया था। टू बी अ प्रोग्रेसिव हिंदू हैज टू क्रिटिसाइज हिंदुइज्म, हम्म, ठीक है, हम्म, बट अ प्रोग्रेसिव मुस्लिम कैन डिफेंड इस्लाम एंड ही इज स्टिल अ प्रोग्रेसिव मुस्लिम, राइट? राइट, हम्म, ये दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर, यू नो। राइट। वो हिजाब हिजाब इज फ्रीडम कह सकते हाँ, हैं, कुछ भी और कह सकते पता हैं। नहीं क्या क्या कह सकते हैं, हाँ 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 और लेकिन मतलब हद है। अब ये तो है कि एक एवरेज इंसान अब इस बात को समझने लगा है कि भाई हाँ ये दोगलापन है, ये तो एक एवरेज इंसान को पता है। लेकिन कहीं हाँ ना कहीं एक आम आदमी को थोड़ा वो भी लगता है कि यार, मतलब जो एक कांग्रेसी हिंदू वाली जो बिलीफ होती बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे धर्म से बहुत ज्यादा क्या मतलब है, क्योंकि हम्म, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बहुत अलग है। एक हिंदू के बिल्कुल लिए बिल्कुल शायद सही बिल्कुल। में धर्म से बहुत ज्यादा लेना देना उसके आम लाइफ में नहीं होता, क्योंकि हम्म, हम उस तरीके से गाइडेड नहीं होते कि भाई बिल्कुल आप उधर देखिए, दूसरी तरफ देख लीजिए, खासकर मुस्लिम हम्म सोसाइटी में, कि वो तो हर चीज, कोई भी नई चीज आती है तो ये हलाल है या हराम है, उस पर बातें शुरू हो हम्म जाती हैं। हम्म हम्म हमारी तरफ तो ऐसा कुछ होता नहीं कि भैया ये हम्म, वेबकैम जो मैंने लगाया ये गीता के हिसाब से सही है या नहीं। ये तो राइट, सवाल सुन के ही लोग हंस पड़ेंगे बिल्कुल कि ये भी बिल्कुल कोई बिल्कुल। सवाल है। हाँ लेकिन वहां एक्चुअली ये, और दूसरी तरफ है कि इसको सीरियसली लिया जा सकता है कि हाँ हाँ, वेबकैम पे बात करना हलाल है या हराम है। तो बिल्कुल। इतना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल अलग है, और ये चीज आप लोगों को समझाएं, कैसे समझाएं, वो बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि आप समाज में जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बड़ा, मतलब आप हिंदुइज्म के बारे में, हिंदू टेक्स्ट के बारे में आप कुछ भी कह लो, तब वो स्कॉलरली बात हो जाएगी। लेकिन जैसे ही दूसरे रिलीजन या दूसरे आइडियोलॉजी की तरफ आप क्रिटिसिज्म लेके बढ़ो, तब आप समाज में भाईचारा को हटा रहे हो। तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग है, और लेकिन इसको क्रैक करना जरूरी है, ताकि जो कांग्रेसी हिंदू है वो वापस झांसे में ना आ जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। और वैसे इसका अंश एक वेस्ट के अंदर भी है, वेस्ट के वो कल्चर में भी इसका एक अंश है, जिसमें जैसे कि मैंने कहा हिंदूज की क्रिटिसिज्म हो रही है यूएस में, वो माइनॉरिटी है, कोई नहीं देख रहा कि वो माइनॉरिटी है, और पूरे एकेडमिक डिस्कोर्स के अंदर एंटी हिंदू डिस्कोर्स होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये राइट, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं है, शेयर एक तरह से पावर की बात है प्रिसाइजली, कि है ना। एब्सोल्युटली, हाँ एब्सोल्युटली। क्योंकि वो वैसे अगर आप ग्लोबल फ्रंट पे देखा जाए तो सबसे पावरफुल रिलीजियस ग्रुपिंग्स आर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, राइट? ट्रू, इन दैट सेंस एब्सोल्युटली, हाँ, हिंदूज आर अ ग्लोबल माइनॉरिटी। तो ट्रू, उस लेंस से, और ऊपर से क्योंकि आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ये सारे के सारे, आपने इसमें जिक्र भी किया है, वहां भी फंडिंग आई, वहां से आई। कितने सारे देश हैं जो अपने आप को इस्लामी बोलते हैं, कितने सारे देश हैं जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी हैं, और वो सारा का सारा हमने उसको, भारत में एक ऐसा डिस्कोर्स क्रिएट हो गया
जिसके अंदर जो दो सबसे पावरफुल रिलीजियस ग्रुपिंग्स है इन द वर्ल्ड, वो परपेचुअल विक्टिम्स हो गई, और जबकि वो एग्रेसर्स रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह से कॉन्क्वेस्ट हुआ है। और जो बाकी सब जगह नेटिव राइट्स की बात होती है कि जो आप कॉलोनियल इन्वेडर्स थे या इन्वेडर्स थे उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस की बात होती है। बाकी जगह बात होती है कि हम जैसे वेस्ट के अंदर है कि आप प्लेस नेम को अगर रिस्टोर करते हो, है ना, तो आप एंटी कॉलोनियलिज्म की तरफ जा रहे हो, आप नेटिव प्लेस नेम उसको रिस्टोर करते हो। और वही एनपीआर के जर्नलिस्ट ने बड़ा ट्वीट किया कि अरे ये लोग तो उसको प्रयागराज कह रहे हैं, ये एंटी मुस्लिम हो गया। मैंने कहा अरे तुम्हारा वहां माउंट डेनाली हुआ था, तब तो सब लिबरल्स वहां पे खड़े हो गए थे कि इतना अच्छा काम हो रहा है क्योंकि वो वापस जा रहा है, डेनाली कहाँ से आ गया। लेकिन या माउंट मैकिंजली जो उसमें था अलास्का में, लेकिन यहाँ पे हो रहा है तो तुम लग रहे हो कि ये फासिज्म हो रहा है और ये हो रहा है। तो ये एक डिस्कोर्स है, और यही आपने इकोसिस्टम की बात की, वो इकोसिस्टम वाली में वो चीज मैंने ये रखी है कि क्यों, मतलब ये जो फिनोमिनन है, इसको इस तरह डिटेल से तो मैंने नहीं लिखा क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि कई सारी चीजें थी, लेकिन ये जो है कि हिंदूज को विज़ावी, मतलब जो व्हाइट लोग हैं वो जिस तरीके से एक अफ्रीकन को या एक मुस्लिम को ट्रीट करते हैं, वैसे वो हिंदू को कभी उस तरीके से ट्रीट नहीं करते। उसकी वजह क्या है, और वो व्हाइट गिल्ट जो है वो विज़ावी हिंदूज एब्सेंट क्यों है, वो चीज मैंने वो टच किया है, बुक में लिखी है। और वो भी एक बड़ा सा चैलेंज है अपने को नैरेटिव पे। बिल्कुल। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ, इसी से रिलेटेड है। मैंने कहा ये करें कि हाउ कैन वी स्नैच अवे द लेबल ऑफ लिबरल एंड सेकुलर फ्रॉम द लेफ्टिस्ट, बिकॉज दे डेफिनेटली आंट ईदर। और उसका मैं राइडर भी बोल दूंगा कि मैं हमेशा अपनी पूरी जिंदगी में अपने आप को लिबरल ही मानता रहा, और अभी भी मैं लिबरल ही मानता हूँ। जब मुझे पता लग रहा है कि लिबरल्स एक्चुअली बहुत इलिबरल है, तो मैं थोड़ा सा हटने लग गया हूँ इससे। तो है ना, मेरे हिसाब से तो डिफॉल्ट ये असम्पशन था कि लिबरल है, लेट पीपल लिव एंड लेट लिव, कोई क्या पहनता है, कोई क्या करता है, उसको हमसे क्या लेना देना है, let people wear what they want, eat what they want. There is not a question. And this is true for a lot of the so-called people who are branded Sanghi today also, right? There are so many inherently liberal Sanghis. मुझे ये जो सवाल है, ये मुझे पहले मैं इस पे सोच भी सकता था, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल आंसर है कि ये सवाल अभी मेरे को बॉदर ही नहीं करता, बिकॉज राइट नाउ हमारा ये फोकस होना ही नहीं चाहिए कि जो लिबरल और सेकुलर, जो ट्रू लिबरलिज्म या ट्रू सेकुलरिज्म है, उसको हम कैसे बचाएं, वो हमारा कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। हमें तो अपनी आइडेंटिटी और अपने बिलीफ और कल्चर को भी बचाना है। तो उसमें हम ट्रूली लिबरल हैं या फिर हिंदुइज्म ट्रूली सेकुलर है, उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज देन आप एक ऐसी बहस में पढ़ रहे हो जिसके कंटूर्स या जिसके कैनवासिंग पहले ही से दूसरी तरफ ने डिफाइन कर रखे हैं। तो आप अपने आप को ट्रू लिबरल और ट्रू सेकुलर प्रूव करने के चक्कर में ही रह जाओगे। तो मैंने तो डिस्कार्ड कर दिया कि ले जाओ भाई, तुम ही बन रहो सेकुलर लिबरल। तो मैंने तो इकोसिस्टम को भी कहा सेकुलर लिबरल इकोसिस्टम। नहीं हूं मैं सेकुलर, नहीं हूं मैं संघी हूं, छोड़ो इसको। तो ये while this is something a question that can be addressed and that can be thought about later, और वो अपने आप हो भी जाएगा। Currently we should not be bothered about it. Currently we should be bothered about how we present our thoughts across. और मुझे लगता है बहुत हद तक ये दोनों वर्ड्स के जो चार्म आज से 5-6 साल पहले थे वो चले गए हैं। और ये सिर्फ अपने में काइंड ऑफ अ नैरो पर्सपेक्टिव से या सिर्फ अपने बारे में मैं नहीं कह रहा, लेकिन अभी these two terms are taken as very political term, like it's not like कि आप राइट्स वगैरह की बात कर सकते हो, वो मुझे समझ में आता है कि हाँ, अगर कोई कहे कि ह्यूमन राइट्स है, विमेन राइट्स है, आप चिल्ला के ये कहने लगो कि मैं ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हूँ, मैं विमेन्स राइट के अगेंस्ट हूँ, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। वो अभी भी वो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि भले ही अभी भी लेफ्ट के कब्जे में हैं, लेकिन आपको
उन सब चीजों पे अटैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्युलर और लिबरल इस तरह का वर्ड है, इन्होंने इतना ज्यादा ओवर यूज कर दिया है। खासकर सेक्युलर तो मजाक बन गया, मजाक बन गया था वो तो। सेक्युलर तो मजाक, राइट, वो तो राम जन्मभूमि मूवमेंट के वक्त से ही सेकुलरिज्म मजाक बन गया है। ये आपके जब बेवकूफ से बेवकूफ लोग, करप्ट से करप्ट लोग यूं कहते हैं कि हमें कॉमनल ताकतों को हराना है, सेकुलर ताकतों को जिताना है, तो अब आम लोगों को भी समझ में आ गया है कि ये बचकानी बात है। जो लिबरल वर्ड है वो अभी भी चलो इंटेलिजेंसिया और इन सब में मैटर करती हैं, और पर इसको एक तरीके से एक लेबल या एक बैज ऑफ ऑनर की तरह हम वेयर करने के लिए लालायित रहें, दैट आई थिंक वी शुड नॉट बी केयर अबाउट। आई विल नॉट, मैं अगर मैं कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहने वाला कि भाई आई एम इलिबरल, बट आई विल नॉट केयर, मैं कर नहीं वाला। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप लिबरल हो, अगर कोई एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, तो मैं उसका 2 मिनट में जवाब दूंगा कि हाँ हूँ। लेकिन मैं अपने आप को यूं कहूं कि आई एम ए लिबरल हिंदू, दैट्स आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट, इवन दो आई एम नॉट। ये बहुत अच्छी चीज बोली है राहुल, स्पेशली फॉर यंग पीपल, कि जब तक हम इन लेबल्स के लिए, जैसे आपने कहा, ललायत रहेंगे, तब तक वो डिस्कोर्स हमको कंट्रोल करता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये उनके डिस्कोर्स से निकले हुए लेबल हैं, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और उसको डिस्कोर्स कंट्रोल करता रहेगा, क्योंकि हम अपने आप को उसके लिए वर्दी करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि हम ऐसा है, हम उल्टी चीज करेंगे जो कि हमारे लिए सही नहीं। और इसी पक्ष में आप उनकी तरफ देख लो ना, उनमें से आज तक किसी ने ऐसा कहा कि हम हिंदू हैं? अगर उनको किसी ने ये कह दिया, अगर डायरेक्टली कह दिया कि भाई आप तो एंटी हिंदू हो, आप तो हिंदुइज्म में मानते ही नहीं हो, तो एक तरीके से नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए वो कहेंगे नहीं, मैं भी तो हिंदू हूँ, लेकिन असर्टिवली वो कभी नहीं बोलेंगे कि मैं हिंदू हूँ। जब एक तरीके से एक्यूजेशन आएगा, वो आएगा, तब वो जाके भले ही कह सकते हैं कि हाँ मैं क्या हिंदू नहीं हूँ, ऐसे, या हिंदुइज्म को अटैक करने के लिए, या हिंदुइज्म को अटैक करने के बोलेंगे देखो मैं हिंदू हूँ। हाँ, प्रिसाइजली। तो वैसे ही उसी तरीके से आप उनके जो टूल्स हैं उन्हीं के तरह यूज करने चाहिए। तो वो जैसे हिंदू वर्ड को ट्रीट करते हैं, हम वैसे लिबरल वर्ड को ट्रीट करें। जैसे वो एक्सेप्ट फॉर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ देम पब्लिकली हिंदुइज्म को या हिंदू वर्ड को अभी तक वो लोग अटैक नहीं करते हैं, एक्सेप्ट वेरी स्मॉल पार्ट विच आई वुड रादर से कि दे आर ऑनेस्ट, कि कम से कम वो छिपाते नहीं है, उनके दिलों में घृणा है। तो ये राजदीप बरखा टाइप के जो लोग हैं, ये लोग कभी हिंदुइज्म को डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे। उसी तरीके से, तो उसी तरह उनका जो अप्रोच है हिंदू या हिंदुइज्म को लेके, आप वैसा ही अप्रोच लिबरल या लिबरलिज्म को लेके बना लो। बिल्कुल सिंपल से आप मेरा वो रहेगा। और अभी तक क्या होता रहा कि ये लेबल बनाते रहे और ये कहते रहे कि अरे सैफ्रनाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये लेबल बनाते रहे, और हम प्रूव करने के चक्कर में लगे रहते रहे कि उनके लेबल पे फिट होते हैं या नहीं होते। तो बहुत रिसेंटली ये ट्रेंड उल्टा हुआ। हमने जब ये अर्बन नक्सल बुक निकाली, ये बहुत स्पेसिफिक तरह से निकाली कि हमने एक लेबल क्रिएट किया, और अभी तक वो झटपटा रहे हैं कि बिल्कुल। अभी तो टाइप के लोग कह रहे हैं कि असली अर्बन नक्सल तो बीजेपी में है, एक दो इधर उधर से वो भी फेक न्यूज निकाल के डाल दी। या चलो कहीं गलती कुछ है भी, तो उस आप देखो कि ये कितनी बड़ी जीत है कि वो खुद ही अर्बन नक्सल टर्म को, जिसको 2-3 साल पहले वो बैज ऑफ ऑनर की तरह ले रहे थे, अब वो खुद कह रहे हैं कि अरे अर्बन नक्सल तो बीजेपी में है, यानी वो खुद मान रहे हैं कि दिस इज ए पेजोरेटिव। तो that's how you know, I mean that's a big victory for us। तो वैसे ही ये ओन अप करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर कोई पूछ रहा है, अगर मेरे को कोई पूछता है कि आप लिबरल हो या नहीं, तब मैं उसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन मैं नहीं कहने वाला, कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल बनने वाली हो तो राहुल रोशन बिलीव्स लिबरल हिंदुइज्म, ऐसा नहीं कहने वाला मैं। That's not my secular। नहीं। बिल्कुल। तो इनफैक्ट एक इसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपने एक्चुअली एक कास्ट, इसके अंदर, इसमें मैं थोड़ा सा बोलूंगा और आपसे भी सुनना चाहूंगा। कुछ आपने कास्ट के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ली हैं, और मैं आपकी और मेरी कहानी उसमें मिलती है, क्योंकि मेरा नाम भी
दो नामों वाला है, संक्रांत सानू, जिसमें जिसमें जो भी कोई जाति वर्धक शब्द थे वो उन्होंने छोड़ दिए कि ये, और मेरे पिताजी आर्य समाज का इन्फ्लुएंस था, पंजाब में मैं बड़ा हुआ, अच्छा, तो वहाँ पे आर्य समाज के इन्फ्लुएंस से उन्होंने कहा है जातिवाद में हम कुछ विश्वास नहीं करते ये शब्द, और आपके वहां पे भी परिवार ने मिलते जुलते कारण, कुछ थोड़े से अलग कारण, लेकिन ये जातिवाद को कम करने के लिए ये प्रयोग किए। और इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि अगर एक्चुअली हमने संघ की वैसे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन if you actually look at the Sangh is largely a reformist movement. It is not. Absolutely. In fact, Twitter में भी देखा होगा, there is this Plaid versus the other debate that goes on, and in that context, Sangh has always been a reformist movement. In fact, there was one of the earlier ones that were having inter-jati dining, right, and things like that, because they were saying break out this thing. तो ये सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप इसको कैसे जवाब दोगे? और मैं भी थोड़ा सा इस पे बोलूंगा कि ये इंट्रोस्पेक्ट अबाउट डिफरेंसेस, इसका क्या बोलोगे? नहीं, differences we should not see it as a difference, I mean like जैसे ट्रैड और उन सब की बात जो हुई थी, तो उनमें से भी कुछ एक को छोड़ दें तो अधिकतर लोग ये मानते हैं कि it's about plurality, it's about pluralism, कि जो मल्टीट्यूड्स ऑफ थॉट्स हैं विद इन द वाइडर हिंदू अम्ब्रेला, राइट फ्रॉम बिल्कुल आप पुराने जमाने में सिर्फ पौराणिक और उन सब चीजों से ट्रैवल करते हुए आर्य समाज, या फिर इवन इस्कॉन या रामकृष्ण मिशन तक का जब आप आ जाएं, और भी कई सारे जो जैसे कर्नाटका वगैरह में जो हैं जो संप्रदाय हैं, उनकी अलग तरीके से पूजा करने की या समझ की बात है, तो ये इसको हम डिफरेंसेस के रूप में तो वी शुड स्टॉप सेइंग इट। और हिंदुत्व वही तो है कि ये सारे जो कम्युनिटी है, इसमें जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो हो सकता है, जो कि सबको बाइंड करे और उससे आप एक दूसरे को एसोसिएट करें, वही आइडेंटिटी हिंदुत्व है, और तो कुछ हिंदुत्व है नहीं। तो इसको मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटी वाली बात है, अगर उसको हम बिल्कुल मिटाने की कोशिश करेंगे, तब तो हम एक तरीके से एब्राहमिक रिलीजन हो जाएंगे कि आपने मान लिया कि ये 7, 8, 9, 10 चीजें हैं, ये जो हैं भाई यही मानोगे तभी हिंदू रहोगे, और नहीं होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी कह दो कि हाँ मैं तो मानता हूँ कि राम मिसोजिनिस्ट थे, मैं तो मानता हूँ कि कृष्ण अच्छे नहीं थे, और फिर भी आप हिंदू हो। अब वो भी नहीं है। मतलब जब ये कह रहा हूँ मैं कि एब्राहमिकाइजेशन या एब्राहमाइजेशन नहीं होना चाहिए हिंदुत्व का, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भैया ये कुछ भी हो गया कि ये कैनवस है, इस पे यहाँ के कुछ भी पेंट कर दो और वो हिंदू हो गए। सो देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग, मिनिमम अंडरस्टैंडिंग कि ये कुछ एक चीजें हैं, एक वाइडर जो हिंदू कल्चर है, बिलीफ है, इट्स काइंड ऑफ जो सनातन कहते हैं, लाइक चला आ रहा है जो, तो इट्स ऑब्वियस ये भी बात है कि कोई भी अपने आप को हिंदू कह दे, वो भी नहीं है कि कुछ भी आप कर रहे हो और फिर कह दो कि आप हिंदू, वैसे भी लोग हैं। तो वहां पे एकेडमिक डिस्कशन हो सकता है कि अब स्वामी अग्निवेश टाइप को ही ले लें, हालांकि आज वो नहीं है, लेकिन अगर ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये भी हिंदू हैं, तो हम क्या मान लें, सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहने और वो हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस तरह की जो बात है, वहां आपको लाइंस तो डिमार्केट करने ही होंगे, कि ऐसा नहीं है कि आप गेरुआ पहन लो, कुछ भी बकवास करते चलो और फिर कहो कि आप हिंदू सेंट हो या हिंदू संप्रदाय के कोई अध्यक्ष बन गए आप। आर्य समाज ने कई बार आई थिंक बोला कि अग्निवेश इज एन इम्पोस्टर, हम उनको नहीं मानते। तो इस तरीके से कोई भी कुछ भी अपने आप को कह दे, वो भी सही नहीं है। तो दैट बिकम्स एन एकेडमिक डिबेट, और वो डिस्कशन वहाँ फाइट्स भी चल सकते हैं, बट ब्रॉडली दिस इज नॉट एग्जैक्टली आई वुड से एज डिफरेंस, बट डिफरेंसेस, बट दिस इज व्हाट दैट डिफाइंस अस। डिफरेंसेस हैं ऑब्वियसली, कास्ट वगैरह को हम कैसे लें मॉडर्न टाइम्स में, उसकी क्या उसको लेके अलग अलग बिलीफ्स हैं, बट देन एज आई सेड, एक तो इतना आई मीन
आज के ज़माने में उसको उस हिसाब से सोचना होगा कि जो आज के चैलेंजेस हैं उस हिसाब से हम चीज़ों को कहाँ प्रायोरिटाइज करें। अभी हम बैठ के ये छोटी छोटी चीज़ों पे बैठ के हम वो एक दूसरे को कैंसिल करने लगे तो देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। Differences तो रहेंगे, as I say, you can either see it as differences or a proof of multitude of thoughts within the wider Hindu community. लेकिन right, we will have to realize the first thing, everyone will have to कम से कम basic minimum agreement होना चाहिए कि this is a very crucial phase through which we are going through. अगर इस वक्त हमें वो एक तरीके से सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। और यहाँ वहीं पे कुछ जो लोग हैं जो कि दोज हु आर वेरी वेल मीनिंग, लेकिन वो चाहते हैं कि चीजों में पॉलिटिक्स न घुसाया जाए, वहां मैं डिफरेंस रखता हूँ। पॉलिटिक्स ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग जस्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीजेपी और एनीथिंग, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस हर हिंदू में रहनी चाहिए। और इसलिए कंप्लीटली ए पॉलिटिकल चीज दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ, चाहे वो कोई भी बात हो, कोई भी मूवमेंट हो, उसमें उसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट या पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है वो सबको दिमाग में रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा राहुल। इसको मैं एक थोड़ा सा अंश ये भी कहूंगा कि हम डिफरेंसेस, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस, हाँ, हिंदू समाज नेचुरली डाइवर्स है। जो ये कमल का भी सवाल है, इसके अंदर डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज होती है, डिफरेंट रीजन्स हैं, अलग अलग जातियां हैं, बल्कि जाति व्यवस्था एक तरह से डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करती है। वो डाइवर्सिटी को इस तरह से प्रिजर्व करती है क्योंकि वो कहती है कि सबके अलग अलग और ये पंथ का जो कॉन्सेप्ट है ये भी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करती है कि अलग अलग पंथ हो सकते हैं, अलग अलग जातियों में परंपरा होती है, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। वो सब का सब जो हिंदू समाज की व्यापक दृष्टि है वो सबको एक अपनी जगह देती है कि वो अपनी तरह से जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो पहला बात है ना। और दूसरी बात इसमें ये कहूंगा कि बहुत सारा जब भी हमारे पे अटैक होता है, कोई बाहर का आक्रमणकारी आता है, एक हमको ये सुझाव दिया जाता है नॉन संघियों से कि अपने आप में, या कभी कभी संघियों से भी, कि अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करो। जब आपके कोई तलवार लेके काटने को आ रहा है तब आपको अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तब आपको तलवार से तलवार को भिड़ाना पड़ेगा। अपने नेवल गेजिंग करोगे और वो तलवार लेके खड़ा हुआ है तो आपका सिर्फ सर काट दिया जाएगा। तो ये हमको बहुत आवश्यक है कि हम इन दोनों चीजों को सेपरेट करें। जो आक्रमणकारी है उसको हम आक्रमण की तरह देखें और उसको आक्रमण की तरह उससे जूझें। और जो कमल he kind of clarified कि I had made differences in ideas about secularism, language politics, regionalism, casteism, etc. तो ये सारे जो हैं, हाँ, ये तो यहाँ पे तो मैं मानूंगा this is not about plurality, but this is about differences in true sense। ये सारे जो हैं, but इसमें तो वही होना चाहिए, we should, it's all about education and awareness। इनमें अधिकतर चीजें सेक्युलरिज्म को लेके अगर डिफरेंसेस हैं तो जाहिर सी बात है कि वही हो जाता है कि कुछ लोगों को शायद अभी भी ट्रू सेक्युलरिज्म चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ मेरा जो ऑफ लेट एक तरीके से कंसिलिएटरी अप्रोच रहा है कि हर इंसान को आप मॉक करके, अटैक करके नहीं समझा सकते, क्योंकि यही काम लेफ्ट ने हमारे साथ करने की कोशिश की और वो हमसे जीत नहीं पाए। तो जो नॉन लेफ्ट के जो इतने फैक्शन हैं, अगर उनमें किसी को आज भी ट्रू सेक्युलरिज्म, ट्रू लिबरलिज्म करना है, या उनके आज भी कोई कास्ट या रीजनल चीजें हैं जो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आई थिंक वी शुड ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन व्हिच इज समथिंग लेफ्ट नेवर ट्राइड टू डू एंड दे आर सफरिंग ड्यू टू दैट। तो विद इन द वाइडर राइट या नॉन लेफ्ट डायलॉग शुड कंटिन्यू। वो बात करके वैसे ही इसको सोल्व कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट वही है कि अब खासकर ट्विटर वगैरह के कारण अभी ऐसी आदत हमें पड़ गई है कि थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं तो हमें टूट पड़ते हैं, एक दूसरे को जोर से मॉक करने लगते हैं, तो वो एक थोड़ा बदलना पड़ेगा। Okay, wonderful. I'm going to again pitch the book Sanghi Who Never Went to Shakha by Rahul Roushan, available at garudabooks.com, grpr.in Sanghi. Thank you so much, Rahul, for being there. I think this was fun conversation. We'll have to do a few more of these.
because there's still a lot many questions that people wanted to get answered. But Yeah. but I'm sure this is a Yeah, it's continuing been dialogue time. Yeah. between all the Sanghis. Yeah. Thank you so much. Yeah, namaste. Thank you. Thank you for inviting me again. And thanks.